Dear student, in our previous video lectures, we have learned how to prepare the profit loss account and cost sheet and thereafter statement of reconciliation. Because when we prepare the profit and loss account, we will be in a position to find out the profit as per profit loss account. On the basis of cost sheets, we are in a position to ascertain the profit as per cost sheet. Now, both the profits are similar or different, it is no matter. When an establishment maintain both the accounts of profit, loss account and cost sheet, reconciliation is essential. Even though in today's video lectures, we will try to find out the profit of profit and loss account, profit as per cost account, and will try to prepare a statement of reconciliation. Therefore, I have already written down some numerical facts like फाइनेंशियल अकाउंट प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स. इसका हिंदी में मीनिंग है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स आपको नीचे दी गई जानकारी प्रोवाइड कर रहा है. विच इंफॉर्मेशन? मटेरियल्स ₹2 lakhs, वेजेस ₹3 lakhs, फैक्ट्री ओवरहेड ₹1 lakhs, ऑफिस ओवरहेड ₹60,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,40,000 and closing stock of finished goods 70,000. No other details are available except all these. Therefore, we need to prepare the profit loss account, and therefore we will be in a position to find out the profit as per profit loss account. ये जो डिटेल दिए है, प्रॉब्लम में खुद ही बोला है कि ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के है. दूसरी पहचान ये है, मैंने कल आपसे कहा था कि ऐसा डाटा जिसका न्यूमेरिकल अमाउंट आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, दैट इज रिलेटेड विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दो इन द प्रॉब्लम्स, यद्यपि इस प्रॉब्लम में नीचे फिर से दिया हुआ है कि कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में जानकारी इस प्रकार से है. इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट की इंफॉर्मेशन अलग दी है, कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन अलग दी है. ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट वी विल प्रिपेयर द प्रॉफिट लॉस अकाउंट to find out the profit as per profit loss account. Now look, this is the profit loss account. Normally this is the debit side and other is the credit side. So we will start the problem as usually. Opening stock of finished goods, whatsoever it may be, opening will be always in the debit side. It is no mean the opening stock of raw material or opening stock of work in progress or opening stock of finished goods. All the opening stock will be in the debit, all the closing stock will be in the credit, especially while prepare the profit loss account. So the opening stock of finished goods, because we are prepare the profit loss account, hence we consider the amount given as per financial account. It is 1,40,000. Then materials ₹2 lakhs. Then wages ₹3 lakhs. Then factory overheads ₹1 lakhs. Then office overheads ₹60,000. Then the closing stock in the credit. Absolutely one information is missing in the numerical problem, which I put here, the sales. 1,100 units at the rate of ₹150. 1100 unit at the rate of ₹150. So what will be the amount of sale? So 1,100 into 150 is equal to the amount we will increase 2500 कर देते हैं बिकॉज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैं आपको अरेंज करके दे रहा हूँ समझने के लिए. नाउ द रेट इज पर यूनिट
2500 multiplied by 1100, therefore 27 lakhs 50,000. Therefore the sales $1,100 into 2,500. Therefore the value would be 27 lakh 50,000. 27 lakhs 50,000. Closing stock was given 70,000. Therefore the total 28 lakhs 20,000. 28 lakhs 20,000. So the difference is a net profit. Now what is the difference? 40 से 2 4 3 7 और 8 मतलब 20 लाख 20 lakhs 20,000. This is the net profit as per profit loss account. दो 3 7 7 और 8 28 से 8 गए तो 20,000. Yes, okay. Now we will prepare the statement of cost, because on the basis of profit loss account we have already find out this profit. Now the cost sheet will start from material. Now what instructions are available for costing? Material and wages on cost मतलब जैसी है वैसी ही रहेगी. So material rupees 2 lakhs plus wages rupees 3 lakhs, total 5 lakhs is equal to prime cost plus factory overhead. As per the instructions of costing department, factory overhead would be the 40%. कल मैंने आपसे कहा था कि जो ओवरहेड का आंकड़ा डायरेक्ट दिया है that is related with financial account, and when the information are available in the term of percentage, it will be reflected in the cost sheet. So therefore the factory overhead 40% of wages, 40% of wages. So the 3 lakh के 40% 1,20,000. Therefore 6 lakhs 20,000. नेक्स्ट ये होगी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड. ऑफिस ओवरहेड्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड. 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड. सो द फैक्ट्री ओवरहेड इज 120 का 80%, दैट इज 96,000. Therefore total 7,16,000. Now this is the cost of goods produced या cost of production. तो प्रॉब्लम में देखिए उसने सेल कहा है 1,100 यूनिट, ओपनिंग स्टॉक 200 यूनिट, सेल 1100 यूनिट है, ओपनिंग 200 यूनिट है और क्लोजिंग 100 यूनिट है. तो आपको इसका प्रोडक्शन कितना हुआ ये यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो अब कैसा करोगे? जनरली आप लोगों को प्रैक्टिस है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल्स. यहाँ पर सोल्ड स्टॉक दिया हुआ है तो हमारा फार्मूला रिवर्स चलेगा. सोल्ड यूनिट्स 11,000 plus closing stock of finished goods 100 unit is equal to 1200 minus opening stock 200 unit. Therefore 1000 unit it is produced. यानी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसमें आपको ये भी निकालना पड़ रहा है कि कंपनी ने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं.
उसके लिए क्लोजिंग यूनिट 200 बचा है, सॉरी ओपनिंग 200 था ये दिया हुआ है, क्लोजिंग 100 बचा है ये भी दिया है, और उसका कहना है कि 1100 बेच रहा है। जब 1100 उसने बेचा है, ये बेचा है 200 पहले के थे, फिर भी 1000 बने, तो उसने बनाया कितने, तो उसके लिए रिवर्स आपका फार्मूला ही है कि सोल्ड यूनिट में आप क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर दो और उसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस करो तो 1000। अब देखिए यानी इसको आप रिवर्स चेक कर सकते हैं, प्रोड्यूस किया है 1000 यूनिट प्लस ओपनिंग थे 200 यूनिट, तो टोटल यूनिट्स हो गए 1200, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट बचा है 100, तो 1200 में से 100 माइनस हुआ तो ये 1100 गए कहां, तो ये सीधी सी बात है, these units are being sold by the company. Now look both the equation. This equation we have prepared because as per the nature of numerical problem. Traditional formula production unit plus opening stock minus closing is equal to units sold. ये फाइंड आउट करना इजी होता है, लेकिन जब प्रोडक्शन यूनिट नहीं दिया है तब हमारा इक्वेशंस अपोजिट जाएगा और उस समय प्रॉब्लम स्टार्ट होगा सोल्ड यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। ओके, अब मुद्दा यह है कि ये हमें क्यों निकालना पड़ा, उसका कारण है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये 1000 यूनिट की है, कितनी 716, इसमें प्लस करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक जो कि 200 यूनिट्स ऑलरेडी दिया हुआ है और उसकी वैल्यू दी हुई है। देखिए यहां पर वैल्यू नहीं दी है, वहां प्रॉब्लम्स है, बिकॉज opening stock of finished goods is 1,40,000, the value are given in the profit loss account. As far as concerned the costing department, the value of 200 unit is also available, but the cost is 1,43,200. So we will not return down here the value as per PL account. अब यहाँ पर चूंकि ओपनिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी है और दोनों में उसे क्लियर किया है कि एक वैल्यू फाइनेंशियल रिकॉर्ड में है, दूसरी कॉस्टिंग में। आप इसको गौर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा 7,16,000 is the cost of 1000 unit, therefore per unit cost यहाँ पर 716 आ रही है, whereas the 200 यूनिट की कॉस्ट 143 है, तो यहाँ पर भी उसकी कॉस्ट 716 पर हेड आ रही है। Now we will make total 8,59,000. This is the cost of 1,200 units minus closing stock 100 units. Now the value of closing stocks are not given in the costing department. तो यहाँ पर मेजर गलती आपसे क्या होगी मैं बता रहा हूँ। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बना रहे हैं तो ये देखिए फाइनेंशियल अकाउंट में आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 70,000 लिख दी है। हम अक्सर क्या करते हैं कि भी इस बात पर गौर नहीं करते हैं कि बिकॉज द कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंट, और जल्दबाजी में बिकॉज ये देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 1,40,000 है, लेकिन कॉस्ट में कितना है 143, से तो डिफरेंस है ना। जब यहाँ डिफरेंस आ गया है इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक में भी डिफरेंस आएगा, लेकिन हम लोग चूंकि यहाँ वैल्यू नहीं दी है तो हम पीएल अकाउंट की वैल्यू उठा के यहाँ पर लिख देते जो कि रॉन्ग है। तो सर फिर क्या करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हमको फाइंड आउट करना है। तो सर फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ये देखिए आपने प्रोड्यूस कितने किया था 1000 यूनिट, ओपनिंग स्टॉक वाज 200, सो व्हाट इज योर टोटल स्टॉक 1200 and the cost of 1200 unit is 8,59,000. So the equation will be here 8,59,000 divided by 1200 multiplied by, अब हमको कॉस्ट किसकी निकालनी है 100 यूनिट्स की, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये वैल्यू निकल करके आएगी, उसके आप चेक कर लीजिए 71,600। चेक कीजिए आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
8,59,000. Though you are watching the video, but you should be in a position to calculate, because in the YouTube or video we have find the calculation. आप पहले तो इसको 1000 यूनिट को 716 जो कॉस्ट आई है पहले 1000 से डिवाइड करो, कितनी आ रही देखिए, ये 716 आई, ठीक है। उसके बाद ये जो 1,43 इसको हम चेक करेंगे वेदर इट इज गिवन करेक्ट। ओ 1 मिनट, लुक हियर, 1,43,200 यहां मिस्टेक हुआ है, ये 1,43,000, it should be 200, so the final cost would be 8,59,200, 8,59,200 divided by 1,200, this will be the per unit 716 ही आया होगा। Now 716 multiplied by 100, so you got the value of क्लोजिंग स्टॉक 71,600। ये प्लस हुआ था, ये माइनस होगा, अब माइनस कीजिए, 12 में से 6 गए तो 6, 8 में से 1 गया तो 7, 15 में से 7 गए तो 8 और 7, दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 11,000 units. Okay. Now, because the selling and distribution overheads are not available, hence it is a cost of goods sold as well as total cost plus profit. Because the sales are available, और ऐसे प्रॉब्लम में आप एक चीज याद रखिए, जो सेल्स फाइनेंशियल अकाउंट में दिया है सेल नहीं बदलेगा, कॉस्ट शीट का भी सेल वही रहेगा और फाइनेंशियल का भी सेल वही रहेगा। 27,50,000. Now the difference between 2750 and 787,600 is equal to 19,62,400. 19,62,400. This is the profit as per cost sheet. कल मैंने आपसे कहा था कि जो बड़ा प्रॉब्लम आएगा उसमें फाइनेंशियल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये हमने बनाया, प्रॉफिट निकल के आया 20,20,000। कॉस्ट शीट का प्रॉफिट नहीं है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करो, प्रॉफिट निकल के आया 19,62,400। बोथ द प्रॉफिट्स आर नॉट मैच, दोनों प्रॉफिट मैच कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है अब हमें बनाना होगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू रिकंसाइल बोथ द प्रॉफिट। देयरफॉर रिकंसिलिएशन statement. The reconciliation statement will start from net profit as per cost sheet. The net profit as per cost account is here reflected 19,62,400, 19,62,400। 1 मिनट, ये वीडियो में शायद प्रॉब्लम्स आएगा। एज पर कॉस्ट यहाँ से चालू करते हैं, 19,62,400। नाउ वी विल कंपेयर द इंफॉर्मेशन विच आर सिमिलर, जो सिमिलर इंफॉर्मेशन है दैट विल बी नॉट अ पार्ट ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसको पहले डिसाइड कर ले। देखिए मटेरियल वेजेस, मटेरियल 2,323 both are similar, hence here is no problem. प्रॉब्लम कहाँ है, फैक्ट्री ओवरहेड चेंज है, ऑफिस ओवरहेड चेंज है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अलग है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अलग है, मतलब 4 ट्रांजैक्शंस आर डिफर फ्रॉम बोथ द अकाउंट। अब इसको हमको हमारे रूल से कंसीडर करना है। सो वन बाय वन, बिकॉज वी आर प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ cost account, therefore we first consider the transaction of cost account and will compare with profit and loss account. तो cost sheet में मटेरियल वेजेस दोनों जगह सही का है। अभी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जाने की जरूरत
नहीं है। आप सिंपल कॉस्ट शीट को फाइनेंशियल से कंपेयर करो एंड यू विल बी इन ए पोजीशन टू प्रिपेयर योर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। material wages no problem because amount are the same. The factory overhead 120, here factory overhead 1 lakhs. Factory overhead is expenses. In cost account it is more or less as compared to financial account, more. How much? 20,000. Expenses greater in cost account will be plus. So the plus फैक्ट्री ओवरहेड, पूरा पैसा नहीं जोड़ना है। यहां पर 1,20,000 है, फाइनेंशियल में 1 लाख है, कॉस्ट अकाउंट में 20,000 ज्यादा है। सिंपल टर्म याद रखिए, खर्चा कॉस्ट अकाउंट में ज्यादा प्लस, कुछ नहीं सोचने का। कितना ज्यादा है? 20,000। देन हम फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। ऑफिस ओवरहेड यहां कितना है? 96,000। फाइनेंशियल में कितना है? 60,000। अगेन कंपेयर, दिस इज एन एक्सपेंसेस, यस। इन कॉस्ट अकाउंट इट इज मोर और लेस एज कंपेयर टू फाइनेंशियल। तो ऑटोमेटिकली सर फाइनेंशियल में 60 है, कॉस्ट में 96 है, तो ये तो 36,000 रुपए कॉस्ट में ज्यादा है तो प्लस ऑफिस ओवरहेड हाउ मच? 36,000। ये दोनों टर्म हो गई। नाउ ओपनिंग स्टॉक कितना दिख रहा है? 1,43,200। और यही ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल में कितना है? 1,40,000। डेबिट का ट्रांजैक्शन है, या तो खर्च याद रखो या डेबिट। कंपेयर करो कॉस्ट से, बहुत आसान तरीका। कॉस्ट में खर्च ज्यादा प्लस, कॉस्ट में डेबिट ज्यादा प्लस। तो ओपनिंग स्टॉक है, यहां से भले आपको डेबिट क्रेडिट समझ में ना आए, बट फाइनेंशियल में तो दिख रहा है ना डेबिट में। देयरफॉर द ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड विद डेबिट साइड। कितना ज्यादा है? 3,200, 3,200 मोर प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। आप बोलोगे सर और कुछ लिखना है क्या? तो अपने एडिशनल है, फैक्ट्री ओवरहेड ओवर चार्ज इन कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड ओवर चार्ज इन कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट। ओके, चलो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया, 2 हो गया, तीसरा हो गया। अब आते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक पर। क्लोजिंग स्टॉक यहां कितना है? 71,600। बट फाइनेंशियल में कितना है? 70,000। ट्रांजैक्शन डेबिट का है कि क्रेडिट का है? क्रेडिट का है। क्रेडिट कॉस्ट में कम है कि ज्यादा है? क्रेडिट कॉस्ट में कम है कि ज्यादा है? तो पीएल में 70 है, कॉस्ट में 71 है, इसका मतलब कॉस्ट में ज्यादा। अब देखो, अभी तक आपने ये ट्रांजैक्शन सब प्लस प्लस किए। ये देखिए, 1,01,20 ज्यादा था प्लस हुआ, 60 96 ज्यादा था प्लस हुआ, 140 143 ज्यादा था प्लस हुआ। लेकिन ये याद रखो, ये सारे डेबिट के आइटम थे। मतलब डेबिट जब मोर होता है कॉस्ट में तो वो प्लस होता है। ज्यादा ये भी है, ये भी ज्यादा था, ये भी ज्यादा था, ये भी ज्यादा था, प्लस तो ये ज्यादा तो ये भी है, लेकिन इसका साइड कौन सा है? When the credit is more, it will be minus. तो ये सीधा सीधा हमारा माइनस में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अंडर वैल्यूड। अभी अंडर वैल्यूड तो कितना फर्क है इसके अंदर में? तो ये दिख रहा है सीधा सीधा 600 का। अब देखिए हम प्रॉब्लम्स को टैली करेंगे। 19,62,400 में 20, 36, 56, 3, 59, 200 प्लस हो जाएंगे। 59,200, 4, 2, 6, 9, 2, 11, 5, 6, 11, 20, 11 हो रहा। चेक करो। वीडियो की सबसे बड़ी बात है कि वह जो वीडियो में आपको प्लस माइनस दिख रहा, इसकी गलती पकड़ते आनी चाहिए, ताकि हल्का सा पता चलता है कि वीडियो बनाते समय वी आर द टीचर। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे कैलकुलेशन बरोबर हो, गलती से धोखे से ह्यूमन एरर आ सकती है।
तो हम इसकी टोटल यदि जब करते हैं तो 4 तो 6, 9 तो 11 की 1 हासिल की 1 7, 7 और 5 12 की 2, 20,21,600। हमें 20,21,600 जो आया है, फर्क पड़ा है, देखना पड़ेगा। 1,00,000 36,000। उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक 1,40, 1,93, 200, 3,200, 6,5,9,5,59। यहाँ पर फर्क पड़ा है कि कौन को 6,4,8 हाँ बराबर है। टोटल चेक करना होगी। एक 1,000 का फर्क दिखाई दे रहा है कहीं पर, कहाँ है देखना पड़ेगा। 70, 1,40, 1,00,000, 1,40,000। उसके बाद 71,670, सॉरी 1,600 का डिफरेंस है यहाँ, नॉट 600, बिकॉज 71,600 माइनस 70 इज इक्वल टू 1,700। ये माइनस होगा, यू गॉट द वैल्यू 20,20,000। देखिए लकीली ये 2020 आ गया और ये हो गया आपका प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट। तो दिस इज द नेचर ऑफ बिग प्रॉब्लम। जो बड़ा प्रॉब्लम आएगा उसका नेचर आप लोगों को समझना पड़ेगा। नाउ समरी में आप कर रहा हूं, हिंदी मीडियम के बच्चे खासकर ध्यान दें। ये प्रॉब्लम ऐसा था जिसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट का भी प्रॉफिट नहीं दिया था, कॉस्ट अकाउंट का भी प्रॉफिट नहीं दिया था, और आपको रिक्वेस्ट की गई थी कि कॉस्ट का प्रॉफिट ढूंढो, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट फाइंड आउट करो और बाद में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। हाँ, उसके लिए इंफॉर्मेशन जरूर दी गई थी। कुछ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंट की थी, कुछ इंफॉर्मेशन कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की थी। मेरे अर्लियर वीडियो लेक्चर्स में मैंने बताया था कि भले जहां तक जो क्लीन डायरेक्ट अमाउंट दिया होता है वो पीएल अकाउंट्स का होता है, और जो फ्रैक्शंस परसेंटेज के अंदर में दिए होते हैं, यूनिट वाइज दिए होते हैं, वो कॉस्ट के अनुसार रिफ्लेक्टेड होते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल के डाटा सीधे दिए थे, कॉस्टिंग का डाटा सीधा दिया था। कुछ जगह आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्ड इस्तेमाल किया कि मटेरियल एंड वेजेस ऑन कॉस्ट, इसकी वैल्यू नहीं दी है। ऑन कॉस्ट मतलब अब जो उसकी कॉस्ट है सो है। हमको पहले बनाना पड़ा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों बनाया? क्योंकि हमको नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना था पीएल अकाउंट। बाद में हमने बनाई कॉस्ट शीट। ये देखिए मटेरियल वेजेस जैसा का वैसा लिया, और फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ परसेंटेज पे ली, यहाँ डायरेक्ट ली। ऑफिस ओवरहेड परसेंटेज पे लिया, वहां पर डायरेक्ट लिया। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू वहां पर अलग थी, कॉस्ट में अलग थी, तो हमने दोनों जगह वैल्यू अलग लिखी है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू फाइनेंशियल में दिया था बट कॉस्ट में दी ही नहीं थी, ये हमको फाइंड आउट करनी पड़ी। फाइंड आउट करने के लिए तरीका क्या था कि 7,16,000 इज द कॉस्ट ऑफ 1,000 यूनिट प्रोड्यूस। बाद में 200 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक था, तो टोटल यूनिट हो गए 1,200। उसकी एग्रीगेट कॉस्ट आई 8,59,200। अब इसमें से पूरे के पूरे बिके नहीं, ये 100 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक था, तो जो स्टॉक बचता है उसकी वैल्यू कॉस्ट शीट में माइनस करनी पड़ती है। और वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, मतलब कितना पैसा है कॉस्ट शीट वाले ने नहीं बताया, वो आपको कह रहा कि यू प्लीज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, पुट द वैल्यू इन द कॉस्ट शीट एंड देन फाइंड आउट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो उसका तरीका सीधा है, आपको कॉस्ट शीट में भी मैंने समझाया है कि जो स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो टोटल कॉस्ट आप टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो।
टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट। तो वैल्यू निकल के आई 71,600। ये हमने माइनस किया, ये हमको टोटल कॉस्ट मिल गई। सेल बोथ आर द सेम। सेल कभी भी दुनिया में, आप एक चीज ख्याल रखिए, कॉस्ट शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का सेल नहीं बदलेगा। कई बार सेल आपको फाइनेंशियल अकाउंट में दिया रहेगा और कॉस्ट शीट में नहीं दिया रहेगा। तो हम में से कोई बोलते हैं सर कॉस्ट शीट में प्रॉफिट दिए, सेल नहीं दिया था, इसका मतलब गणित गलत था। तो हमने कॉस्ट शीट का प्रॉफिट नहीं निकाला, वो गलती करना नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंट का सेल ही कॉस्ट अकाउंट का सेल्स कंसीडर होगा। ठीक है, वैसे यहां पर ये देखिए दिया सेल्स 1100 यूनिट एट द रेट ऑफ 2500, तो वैल्यू निकल के आई 27,50,000। Here is also 2750, but इसका प्रॉफिट 1960 to 400, इसका प्रॉफिट 2020, both are the deferred, therefore reconciliation statement is required. Reconciliation statement is start from net profit of cost account से चालू हो गया। जो खर्च या डेबिट का ट्रांजेक्शन, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट है, ऑफिस ओवरहेड डेबिट ट्रांजेक्शन है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट ट्रांजैक्शन है, और तीनों के तीनों कॉस्ट अकाउंट में फाइनेंशियल अकाउंट की अपेक्षा ज्यादा है। तो जितने ज्यादा है वो प्लस हो गए, 1 2 3, फाइनल टोटल बाहर गई, प्रॉफिट में प्लस हो गया, 20,21,600 आ गया। अब इसमें से क्रेडिट के आइटम यदि कॉस्ट में ज्यादा है तो माइनस होगी। तो क्योंकि अब ये तो सब कुछ हो ही गया, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक बचा था, ये 71,600 था, ये यहाँ कितना है 70,000 है, ये भी कॉस्ट में ज्यादा है। यानी लकीली देखो, आपको प्रॉब्लम समझना है तो बिल्कुल दिमाग को अलर्ट रह के करना पड़ेगा। 4 आइटम्स रिकंसिलिएशन के काम में आई है और चारों की चारों कॉस्ट में ज्यादा है, लेकिन 3 प्लस हुई है, 1 माइनस हुई है, और यहीं से आपको रिकंसिलिएशन समझ जाना है। चारों की चारों ज्यादा है तो चारों प्लस हो गई क्या? नहीं, 3 प्लस हुई। कौन सी प्लस हुई है? जो डेबिट के ट्रांजैक्शन थे कॉस्ट में ज्यादा थे, प्लस हो गए। एक वो भी कॉस्ट में ज्यादा था, लेकिन वो ट्रांजैक्शन डेबिट का नहीं क्रेडिट का था, तो डेबिट क्रेडिट उसका अपोजिट होता है। डेबिट ज्यादा प्लस, क्रेडिट ज्यादा माइनस, ये हो गया माइनस। अल्टीमेटली आपका आंसर आया 2020। दिस इज द प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट। सो होप whenever in the university examination such types of nature of problems if some come before you, so you must understood, don't bother, prepare in very cool mind first clear account, बाद में इत्मीनान से कॉस्ट शीट बनाओ। और ये जब बड़ा गणित आता है तो आंकड़े कम रहते हैं, आसानी से प्रॉब्लम बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने आपको दिए थे उसमें से भी आपने कुछ कैलकुलेशंस करके उसको समझा होगा। काफ़ी लेक्चर्स मैंने इसके ऊपर में दिए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक मैंने ख़त्म करना चाहिए। हो सकता है अगला वीडियो मेरा रिकंसिलिएशन पे आए तो आए, अदरवाइज वी विल मूव फॉर प्रोसेस अकाउंट। थैंक यू।